mind that yes, I want to study from Italy only. गiving actually giving scholarship to the international student. और मेरी किस्मत इतनी खराब है कि वो जो अपोस्टाइल भी होकर आई, मैंने डीओबी अप्लाई किया था, तो अपोस्टाइल में एक स्टैम्प मिसिंग रह गया था. Hello everyone. So today we have Syed Adnan Kaif with us. We'll be knowing everything about his story. कि कहाँ से उन्हें वीजा लगा, कहाँ से उन्हें एडमिशन आया, and what challenges did he face during the whole process. So we'll be knowing everything from him. Stay tuned till the end. Okay, so first of all, congratulations, Adnan, for your visa success. Thank you. How are you feeling now? Yeah, like I'm feeling finally relaxed that yes, I got my visa after such a hectic process. So yeah, I'm relaxed right now, and yes, I'm excited to land there. Okay, that's great. Please introduce yourself for our audience. Yeah, hello everyone. I am Syed Adnan Kafi. I am from Jamshedpur, Jharkhand. I completed my schooling from Tarapur School, and like I further went for my graduation in BBA from Netaji Subhash University, and then like I made up my mind like yes, I have to go in a foreign country and study. So started researching about everything, the different countries, and then I contacted my friends who are studying internationally. So I asked about them to which country is best for me. So then I got a video like popping up about Italy. So then I made up my mind that yes, I want to study from Italy only. My master's should be from Italy. So whatever I had to do in such a process, I invested my time and efforts for Italy. Okay, which So course yeah, did you that's it. choose? I chose global economy and business in the University of Casino. Okay, so but why did you choose this course only from University of Casino? Yeah. So like this was a question because I chose this course because I studied from ISC. Okay, so I got my chance to change my stream in standard 9 only. So I took up commerce that time. So my core subject was commerce and economics. So I studied economics in standard 10. Then I completed my 12th with economics. Then I further went ahead and pursued my BBA. So in that, my core subject was economics. So I wanted to excel myself in this subject. That's why I took economics as masters. Okay, that's great. Economy is also a favorite subject of most of the students. Yes. Decision you choose. Okay, so why did you choose Italy only? Did you anybody convinced you, or it was your choice only? No, I chose Italy because like there was many things going around and sometimes coming up on the reels on Instagram, sometimes on my YouTube feeds because I was searching, for study abroad, and then I got to know like the tuition fees in Italy is very low. You are getting scholarships and the quality of education is not compromised. That is the most important thing a student wants. So like Italy is the perfect place to study for a student. Like they are giving actually giving scholarship to the international student. Yeah, right. And the most important thing is you don't have to prepare for IELTS or it is important that you have to clear the IELTS. So you can prepare a medium of instruction certificate and you can good to go. Okay, so you must have applied with only with the MOI certificate, right? You didn't Yes, appear for IELTS. no, I didn't appear for IELTS. Okay, that's great. So please tell us something about your visa interview. How was it? Like this time the interview was blunt because maybe I got late because मेरा जो process था वो बहुत डिले हो गया था. Mm-hmm. मेरी जो यूनिवर्सिटी थी मैंने लास्ट ईयर एग्जाम क्रैक किया था अगस्त में. मेरा डिग्री जो मुझे मिला है वो 31 अगस्त को मुझे मिला है. उसके बाद मुझे अटेस्टेशन करवानी पड़ी. देन अपोस्टाइल के लिए गई. और मेरी किस्मत इतनी खराब है कि वो जो अपोस्टाइल भी होकर आई, मैंने डीओबी अप्लाई किया था, तो अपोस्टाइल में एक स्टैम्प मिसिंग रह गया था. और जिस ऑफिसर ने स्टैम्प किया था वो रिटायर हो गए स्टैम्प करके. तो सारा डॉक्यूमेंट्स फिर से. और मुझे कॉल आता है कॉन्सुलेट से कि आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो गलत है. तो लाइक आई वाज शॉक कि मैम व्हाट इज रॉन्ग प्लीज एक्सप्लेन मी. तो शी सेड लाइक द स्टैम्प इज मिसिंग ऑन द डिग्री सर्टिफिकेट.
तो देन मुझे सारा डॉक्यूमेंट फिर से अपोस्टाइल कराना पड़ा, तो तब तक बहुत लेट हो गया था। एंड देन मुझे 18 की अपॉइंटमेंट मिली, अक्टूबर 18 की अपॉइंटमेंट मिली। मैंने डॉक्यूमेंट फिर से सारी डीओबी वगैरह लेकर सबमिट कर कर आया, और 4 दिन बाद ही मुझे कॉल आता है इंटरव्यू के लिए ऑन व्हाट्सएप। और लाइक वो इंटरव्यू ब्लंट होता है, बट इतना भी ब्लंट नहीं होता है कि लाइक यू गेट नर्वस एंड ऑल। वो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आस्किंग योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, देन ही आस्क लाइक हाउ मेनी कॉलेजेस यू अप्लाइड फॉर, एंड देन ही आस्क लाइक कहाँ कहाँ से एडमिशन आई थी। So for me, like he asked how many colleges you applied. So I made him count like colleges Milan, Palermo, Padova. So he asked like कहाँ से आई तुम्हारी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आई। तो आई सेड सर आउट ऑफ 5 मुझे पलेर्मो से आई एंड कसिनो से आई। तो आई न्यू दैट ही विल आस्क तुमने कसिनो क्यों चूज किया। तो लाइक आई मेंशन द रीजन कि मुझे इकोनॉमिक्स चाहिए था सर, और कसिनो में मुझे इकोनॉमिक्स मिल रही थी। Economics was my core subject, so I want to excel myself in economics. तो he was convinced कि because क्या होता है ना कि अगर आप पॉलिश आंसर दोगे उन्हें कि प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड क्लास, तो he was kind of making faces. I was giving that signal, but मैंने चेंज किया स्टेटमेंट को, because वो सुन चुके हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसा सब। तो बी श्योर टू ऐड फैक्ट्स। कसिनो की आप रैंकिंग मेंशन कर सकते हो, और कसिनो की लाइक जो कोर्सेज है आपकी, उस कोर्स के बारे में आप ऐड कर सकते हो कि ये सब्जेक्ट्स मैंने प्रीवियसली पढ़ रखा है। तो वो क्या है कि ज्यादा रीजनेबल साउंड करता है। Wow, that's great. So in how many days did तो you लाइक receive your visa? इट्स व्हाट एग्जैक्टली 9 days, 9 Only in working just days. 9 working days. So like I applied on 18th and 27th I got my visa. Okay, so which was your consulate or embassy? It was Kolkata. Sorry, it was It was Kolkata. Kolkata Okay, consulate. Kolkata. Okay, all right. So how much funds did you show? Maybe no. Yeah, I showed around 10 lakhs. Okay, And that's it is great. very important that you break down and tell him your funds, because वो मे बी ना पूछे आपसे, लेकिन बिकॉज यू शुड बी क्लियर विथ योर इंटेंशन। अगर उन्हें जरा से भी मौका दे रहे हैं ना, तो फंड्स बताओ, दैट इज गुड, बट हाउ यू गॉट दैट फंड एंड कहाँ से आया। लाइक आई वॉज स्पॉन्सरिंग माई सेल्फ, सो मैंने उन्हें बताया कि आई वॉज वर्किंग फ्रॉम द पीरियड ऑफ 2 years, एंड मेरे इतना इतना मैंने सेव किया था, इतना मैंने मॉम से लिया है, और 2 lakhs का मैंने पर्सनल लोन लिया है। और उनके बोलने से पहले मैंने खुद ही बता दिया कि देर इज 2 earning member in my family, my sister and my father. My sister has promised me that she will repay my loan, and if further amount is needed, I will take help of it. Okay, so as you said, आपने खुद से sponsor किया है, so are there any gap years? No, there was not gap, बट वो क्या होता है ना कि इंडियन यूनिवर्सिटीज में होता है कि लाइक इफ यू पास आउट लास्ट ईयर, मोस्ट प्रोबेबली है कि डिग्री आपको अर्लीस्ट भी मिलेगी तो नेक्स्ट ईयर मिलेगी। बट द वीजा ऑफिसर इज नॉट कन्विंस्ड विद दैट। ही विल कि मैंने प्रोसेस की तैयारी की है, ही विल, वो सीधा बोलेंगे कि प्रोसेस में 1 साल नहीं लगता है। बट आप तो बहस नहीं लगा सकते वीजा ऑफिसर से। तो मेक श्योर कि कुछ भी ऐसा रखो बोलने के लिए कि 1 साल मैंने ये किया है, तो वो अच्छा इंप्रेशन बनता है। लाइक मैंने जैसे अपने कॉलेज के लास्ट ईयर है उससे ही मैंने जॉब स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। तो गैप मेरा जो है वो क्लियर हो गया था। और मैंने अच्छे से लाइक अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर एंड सैलरी स्लिप्स वो सारी अटैच करके दी थी वीजा। That's so तो amazing, ये अदनान। आपने इतना ब्यूटीफुली अपना इंटरव्यू क्रैक किया, आपने इतने सारे चैलेंजेस फेस किए। फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू सेड कि आपके जो आप जिनसे अपोस्टाइल करवाने वाले थे या जहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने थे उनका भी रिटायरमेंट हो गया एट द टाइम। देन आपने सडनली अगस्त में आपका प्रोसेस भी चल ही रहा था, इतना क्विकली आपने सारे काम किए एंड देन सक्सेसफुली यू रिसीव्ड योर वीज़ा। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। ओके सो Yeah, thank you. But the point is like I would like to add कि if you take a consultancy that is good, because किसी को भी रिस्क लेने का शौक नहीं है कि
इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, लाइफ न्यू स्टार्ट होने वाला है। तो मुझे भी ऐसा था कि मैं खुद से रिस्क नहीं लेना था। कंसल्टेंसी लेना इज गुड, बट प्लीज सी हैव सम नॉलेज अबाउट द प्रोसेस, बिकॉज क्या है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। वो तो कंसल्टेंसी नो डाउट अपना काम करेगी, लेकिन क्या है कि आपको भी अगर नॉलेज रहे ना, तो आपको पता रहेगा कि मेरा अराउंड चल क्या रहा है। क्योंकि क्या होता है कि मेनी अ टाइम्स स्टूडेंट से पूछा जाता है हम्म। इंटरव्यू में कि डिड यू टेक एनी कंसल्टेंसी, और हम्म। स्टूडेंट बोल देते हैं कि नहीं मैंने नहीं ली। तो उस टाइम क्या होता है कि वीजा ऑफिसर में भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि टेल मी अबाउट द प्रोसेस, कैसे बिगन बिगिन किया आपने। तो वहां पे स्टूडेंट फंस जाते हैं, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट चल जाता है। सो नेवर ब्लफ इन इंटरव्यू, बिकॉज वो A to Z इंफॉर्मेशन रखते हैं पूरी। तो ब्लफ करना इज नॉट अ गुड थिंग वीजा। Okay, that's great. So, what are your future plans after coming back from Italy? My future plan is like I'll be getting, if I am getting internship, I'll be doing that internship. And after coming back in India, I'll be applying in various MNCs. Or my brother is working in Dubai. He has told me like, whenever you complete your degree, please let me know. I'll get you a job position in the firm. Okay, so your brother is also working abroad. Yes. So, besides visa interview, did you face any other challenge or other problem during the process? नॉट अ चैलेंज, बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि अगर माइंडसेट है आपका कि यू वांट टू स्टडी इन इटली ओनली, तो ट्राई टू एनरोल योरसेल्फ अ लिटिल अर्लीस्ट। बिकॉज क्या होता है ना कि इटली में मैंने ये चीज नोटिस किया है कि हम्म। फर्स्ट कम फर्स्ट का ऐसा कुछ होता है। तो लाइक अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज चाहिए, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज चाहिए, तो आप थोड़ा पहले एनरोल करो। मैंने क्या किया था कि मैंने फेब्रवरी में एनरोल किया था, और वो तब तक थर्ड कॉल आ गई थी। तो मोस्टली जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, थर्ड कॉल में एक्सेप्टेंस बहुत कम चांसेस रहते हैं। और अगर आप सितंबर अक्टूबर से अप्लाई करोगे ना, तो आपके पास ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको बड़ी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आए, आपकी चॉइस की यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आए। और एक और पॉइंट मुझे ऐड करनी है कि अपनी कवर लेटर ना खुद से लिखो, कोई भी AI का यूज मत करो। बिकॉज तुम अपनी स्टोरी खुद बताओ उसमें, वो ज्यादा हम्म। बेहतर रहेगा। बिकॉज इंटरव्यू क्या होता है कि 5-6 मिनट का रहता है, वीजा ऑफिसर के पास उतनी टाइम नहीं है कि आपके वो लॉन्ग इंटरव्यू ले बैठ कर। तो कवर लेटर इज अ एडवांटेज दैट इंटरव्यू में जो चीज आप नहीं एक्सप्लेन कर पाए, वो आपका कवर लेटर एक्सप्लेन कर दे। और स्टिक टू द थिंग विच यू हैव रिटन इन योर कवर लेटर, वो बहुत जरूरी है। Okay, so did you prepare your cover letter by yourself? Yes, I prepared myself. Okay, so would you like to share any tips that how can we prepare our cover letter perfectly? हाँ, परफेक्टली आप लाइक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो कि मैंने यहाँ से पढ़ाई किया है, मैंने इस कोर्स में अपनी ग्रेजुएशन की है, या फिर 12th इसमें कंप्लीट की है। और फिर अगर आपने कुछ अचीव किया है, तो वो भी लिख दो कि मेरी हॉबीज एंड इंटरेस्ट ये है। जैसे कि मैंने फुटबॉल और एथलेटिक्स में बहुत कुछ अचीव किया था, तो मैंने वहां पे मेंशन किया था प्रॉपरली कि लाइक यस, इन दिस फील्ड आई हैव गॉट दिस। और ये जरूर से लिखो कि मुझे इन सारी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आई है। बिकॉज वो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आपको क्यों इतनी सारी यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस दे रही है। फिर सेकेंड पैरा में अपने स्पॉन्सर्स के बारे में लिखो, कैसे आप अपनी इनकम को मैनेज करोगे उसके बारे में लिखो, है ना। तो आप ये भी पॉइंट मेंशन कर सकते हो, बिकॉज वो बहुत अच्छा पॉइंट है। कॉन्सुलेट की वेबसाइट पे एक €460 समथिंग अप्रॉक्स की कुछ वैल्यू होती है। तो Okay. वो वैल्यू को आप अपनी कोर्स पीरियड की जितनी मंथ्स है, उसको कैलकुलेट करके जो ग्रैंड टोटल आ रही है, उससे आप जस्टिफाई कर सकते हो कि मेरे बैंक अकाउंट में इतनी फंड्स है, एंड अकॉर्डिंग टू योर वेबसाइट दिस इज द फंड विच अ स्टूडेंट नीड टू मेंटेन टू सर्वाइव इन इटली। सो उससे भी आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो, बिकॉज फैक्ट एंड फिगर इज यूजिंग इज वेरी गुड। और फिर क्या है कि आपने इटली क्यों चूज किया ओवर अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, उसे लाइक आप मेंशन कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, अपनी इंटेंशन को जरूर लास्ट पैरा में, अच्छे से लास्ट पैरा में अपनी इंटेंशन को लिखो कि दैट आई वांट टू रिटर्न टू इंडिया। बिकॉज अभी क्या है ना
कि मोस्टली रिजेक्शन, इनकम से भी ज्यादा रिजेक्शन आ रही है इंटेंशन टू रिटर्न टू इंडिया में। तो ये इंटेंशन हो सके तो एक अलग से इंटेंशन लेटर बना लो। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर लाइक नजर रखकर बनाओगे कवर लेटर तो वो डेफिनेटली वर्थ इट होगा। ओके, सो आपने भी अलग से इंटेंशन लेटर प्रिपेयर किया था? नहीं, मैंने अलग से इंटेंशन लेटर प्रिपेयर नहीं किया था, मेरे फ्रेंड ने किया था। बट मैंने एक ही पैरे में लिख दिया था कि लाइक आई एम द ओनली सन टू माय पेरेंट्स, आई कांट अफोर्ड टू स्टडी अब्रॉड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो आफ्टर द completion ऑफ माय कोर्स आई विल रिटर्न बैक टू इंडिया एंड सपोर्ट माय पेरेंट्स इन देयर अर्ली एजेस। Okay, great, great. Thank you for sharing such wonderful tips. So, may I know how was your overall experience with Eurodays? या इट वाज वेरी गुड, इट वाज वेरी गुड बिकॉज मुझे टाइम टू टाइम अपडेट्स मिल रही थी, है ना। और बहुत प्रोफेशनली काम किया गया है मेरे साथ। लाइक मुझे भी ऐसा कभी झिझक नहीं लगा कि आई एम वर्किंग विद प्रोफेशनल्स बट देयर एटीट्यूड इज सो फ्रेंडली। मैं उन्हें दिन में 4 बार कॉल कर रहा हूँ, 5 बार कॉल कर रहा हूँ, दे आर ऑल्सो आंसरिंग माई कॉल, नॉट लाइक अदर। मैंने बहुत सारी कंसल्टेंसीज के बारे में नाम नहीं लूंगा, मैंने सुना है कि दे आर चार्जिंग 2 लाख रुपीज, और लाइक कोई अपडेट स्टूडेंट को कोई क्लू ही नहीं है कि उसके अराउंड चल क्या रहा है। तो लाइक कोई फायदा नहीं है वैसे काम करके, कि बिकॉज स्टूडेंट को कोई क्लू नहीं है, उसे पता नहीं है, वो इटली चल तो गया बट उसे पता नहीं है प्रोसेस के बारे में कि कैसे हुआ, वो कैसे पहुंचा इटली, उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगी, क्या लगी, वो बस उसे कंसल्टेंसी जो बोल रही है वो जा रहा है। बट यूरो ड्रीम्स में मुझे एडुकेट किया गया, जो चीज मुझे नहीं पता था वो चीज भी मुझे बताया गया। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। Okay, thank you so much, Adnan. We are so glad that you are happy with our services. And thank you so much for sharing your experience till now. आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी जर्नी प्रेजेंट की, कैसे आपने एडमिशन लिया, कैसे आपने अच्छे से रिसर्च किया अपनी यूनिवर्सिटी से लेकर क्यों इटली जाना है आपको, आप डिटर्मिन थे हर चीज़ को लेकर। एंड सक्सेसफुली आपने इतने कम टाइम में भी अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किए। आपने लेट ज्वाइन किया था, लेट अपनी प्रोसेस स्टार्ट की थी, बट स्टिल आपने एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी में थर्ड कॉल में भी, बिकॉज थर्ड कॉल आने लगते हैं तब तक। कसीनो यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन आया, कसीनो यूनिवर्सिटी से। देन आपने आगे की वीज़ा प्रोसेस भी इतना अच्छे से मैनेज किया सब कुछ। सो वी आर सो हैप्पी एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंड फॉर योर जर्नी फर्दर। वी आर सो हैप्पी दैट यू आर फ्लाइंग टू इटली। वी विश you all the best for your journey abroad and congratulations once again. थैंक यू, थैंक यू।